initiated market development assistance MDA scheme for biofertilizer and organic fertilizers. Editor of Organic Farming and Biofertilizer newsletter in March 2021. Yes. And as we are aware about him, that he is in charge of various other activities initiated and likely to get NABL accreditation for all notified labs. ये सब हो ही है. ठीक है sir, and we are highly obliged that you have spared a time for this session from your busy schedule. As I have talked many times that you were busy in various kind of conferences or meetings, but somehow you have spared your time. So we are very pleased to initiate this program. Sir. Now I would like to call our director, Professor MP Singh sir, to welcome Director Dr. Jagnesh Sharma sir, Director NCOF Ghaziabad. ठीक है सर, ठीक है जी. थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र पाल जी. मैं सर एक ऑनलाइन उसमें हूँ किसी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर में ना, एक घंटे में देता हूँ. ठीक, बोलता हूँ. I think Dr. is busy right now to discussing something. So thank you Dr. Devendra Pal ji on the behalf of Tirthankar Mahavir University, especially on the behalf of College of Agriculture Sciences, our staff, our non-teaching staff, our teaching staff, and on the behalf of our students. I heartily welcome Dr. Ganesh Sharma ji, Director, National Center of Organic and Natural Farming, Ghaziabad, which runs Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, Government of India. Certainly, this session will be a landmark step for our students as well as to our faculty members to learn about the organic farming and its certification. This is a new thing, as you know. During the COVID pandemic situation, everyone is scared and worry about their health, and this is a very important time, and this is very crucial time also for everyone in respect of health. Naturally, it is a well proven fact that one can make his or her health in a landmark situation or in a proper situation or in a healthy situation using the organic products. So in today's session, we will be able to understand, and the objective of today's session is to understand the concepts of organic farming, its cultivation, its marketing, its sales, and its certification also. So naturally, without taking much time, I again welcome Dr. Ganesh Sharma ji in this very knowledgeable session. Thank you and welcome, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to call Dr. Jagnesh Sharma sir to start this session. Dr. Devendra Pal ji, I request to all except Dr. Ganesh, please mute yourself. Yes, so sir. that it will not disturb to Dr. Sharma to deliver his session. Thank you. Please mute yourself, all the participants. I request all the participants mute. First of all, good morning to all of you. Very good morning to all of you. I think Dr. MP Singh and the university, faculty, especially I would like to thank Dr. Devendra Pal Singh. He visited our center. He met me, he discussed with me and nicely coordinated the things. And today I am here. I am pleased and I am happy to be with all of you today for,
delivering a lecture on organic farming and certification, including marketing, etc. So you have shown the interest. Thanks a lot to the, to the Vice Chancellor also of this university, that he has allowed you to take up this important aspect in your university, this organic farming, natural farming, and Hello. chemical-free farming. Hello. Hello. Am I audible to all? Hello. Am I audible to all? You are audible, sir. Yes, sir, you are audible. Hello. Hello. Some disturbance is coming. Hello. So, अरे ये कौन है? who is saying this hello, hello? Yes, sir. Okay. So I express my, gratitude to the university, other faculty and students, etc., who have coordinated and who are, behind the scene for organizing this session, including team led by Dr. Devendra Pal Singh and Dr. MP Singh also. Thank you very much, all of you. And let me first of all introduce myself, Dr. Gagnesh Sharma. I am working as the director in the National Center for Organic and Natural Farming, located at Ghaziabad. It is a subordinate office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And our mandate is, to promote organic farming and natural farming in the country, that is chemical-free farming in our country. And 4 mandates are there, which we take up in a big way, in a broader sense. First one is training, another one is certification, then come testing, and then come the marketing part. And these are the 4 aspects which we take up for, promoting organic farming in a big way in our country. So we are not a single organization over here. We have our regional centers also under this National Center for Organic and Natural Farming. Regional Center of Organic and Natural Farming, Ghaziabad itself. There is a laboratory also. Then we have a Regional Center of Organic and Natural Farming in Nagpur. Then we have a Regional Center of Organic and Natural Farming in Bangalore. So we have another Regional Center of Organic and Natural Farming in Bhubaneswar. Then in the northeastern region, we have Regional Center for Organic and Natural Farming in Imphal. So all these centers, they cater to, they serve 5 to 6 states covering entire country. So this is the setup, the establishment of our, institute. And as I stated that we look after, mainly the promotion of organic farming by way of coordinating with the universities, with the institutes like yours. And we have signed some MOUs with the National Rural Livelihood Mission, with other universities to take up organic farming and natural farming in a big way. ICAR is also our associate for collaborations as far as trainings and, mutual agreements are concerned. So we used to coordinate with other R&D institutes on, formulating the testing protocols, the standards for testing of biofertilizers and organic fertilizers as well. So this is in brief what our organization is doing. We have a dedicated PGS India web portal where we take up certification things in a big way, which is a low-cost certification system, or we can say an alternate to the third-party certification system. So this way we cover organic farming and certification in our country. We used to organize various training programs. I'm going to share the screen with you now, my presentation. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay. So I have, discussed in detail about our mandate and activities of National Center of Organic and Natural Farming. We do capacity building through human resource development by imparting training on various aspects of organic
organic farming, organic production, value addition, certification, quality control, etc. We have the laboratories where we take up the statutory quality control activities under FCO 1985. This is a fertilizer control order where biofertilizers and organic fertilizers are specified and categorized different way, and some specifications and parameters are laid down. We test according to those specifications and procedures, this organic fertilizers and biofertilizers. And we declare that the organic fertilizers, the organic inputs are quality, that is standard or substandard. So we are the notified laboratory of central government in this aspect. And then come the capital investment subsidy scheme. It started in 2010, and then about 80 to 84 units were established, and financial assistance was given for setting up of these biofertilizers and organic fertilizer production units. We, as I discussed with you, that we have a low-cost online PGS organic certification system to develop domestic organic market for small and marginal farmers. We have a Jaivik Kheti marketing portal also for marketing also, where the farmers, they take up direct selling of their products. They have to just register just by putting the mobile number, they get user ID, password, then they have to upload their produce. This is a direct selling, and buyers also they can register. Kharidar bhi register kar sakte hain. So selling and buying take place in this JP portal, and this is being managed by MSTC. And then come publicity and awareness programs, the way today I am taking up with you. So this is the mandate in brief and activities of our center. Now let me discuss with you something about the brief of this organic scenario in our country, organic agriculture in India. So area under this organic farming, as far as third party said, there are two kinds of certification system. Organic farming is without certification. इसको हम हिंदी में प्रमाणीकरण भी बोलते हैं. So organic farming में, if you are taking up farming that is chemical free farming, who is going to endorse that you are not using any chemicals and pesticides, etc. So there are certification bodies under National Program for Organic Production, which is being implemented by APEDA, Ministry of Commerce, Government of India. So you can see NPOP I have mentioned, that is 28 lakh hectare is under National Program for Organic. Out of which 28 lakh hectare is under this third-party certification system. And PGS India certification has reached up to 8 lakh hectare of area they have covered. And this is the scenario. And production also you can see under NPOP, that is third-party certification, 35 lakh tons. Under PGS it is about 6.5 tons. As far as farmers are concerned, under NPOP, 16 lakh farmers are there, which are mostly big and medium-sized farmers. And PGS system of certification, which has small and marginal farmers, the farmer number is about 10 lakhs. Now it has reached up to 12 lakh also recently. So this is the brief scenario about our this certified organic produce in our country. And you can see the Jaivik Bharat logo. This Jaivik Bharat logo is applicable to both third party as well as PGS India certified produce can use this Jaivik Bharat portal, but one has to take FSSAI registration also for using this Jaivik Bharat logo. This India Organic logo is for NPOP, that is third party certification, and PGS India for this logo you can see the blue color. So this way the things are happening in our country as far as organic farming certification is concerned. Now, what is the vision of organic farming? This policy 2.5, 10% of cultivable land is to be covered under organic farming, but we have reached up to near to say 1 to 2% area. We have to cover up to 10% of cultivable land. So sky is the limit. We have to reach. We have to cover a long distance as far as 10% of cultivable land is concerned. So 14 million hectare area is advocated. We have reached at present about 3.6 million hectare. 36 lakh hectare means 3.6 million hectare. So around 2% area has been covered as on date as far as organic farming is concerned. So target by 2025 is about 5 million hectare. So this is there. This is the mission vision
of Government of India. And current market status, if you see, there is a very good growth in exports, and you can see about 20 to 28% combined annual growth rate. So it's a good picture. Export share 7,000 crore, total market size is 11,500 crore. So you can see that potential is there, scope is there, exports are happening, domestic market is also growing. So yes, farmers can see a good bright future in this as far as organic farming is concerned. Now, let me tell you, before going ahead with the organic farming and certification system in detail, let us analyze what are the challenges which lead to shifting towards organic farm, and now latest we can say natural farming. So indiscriminate use of chemical fertilizers leading to depletion of soil organic and microbial load also depleted, with consequent deterioration of soil health, fertility and productivity. Subsidy on chemical fertilizers is there, but not in case of organic and biofertilizers. Shortfall of manure is there, compost and biofertilizers for meeting the requirement of organic farming. So non-availability of quality organic, bio and organic fertilizers. These are not easily available or widely available. If available, also quality are the issues. So identification of crops and varieties responsive to organic farming for different agroclimatic zones. This is also one of the challenge. Still, it has not been done, and not such kind of crops have not yet been identified. So this need to be taken up by R&D institutes. Lack of awareness, last mile extension to farmer and transfer of package of practices to land. Practices are there here and there lying, but nobody has compiled it properly. We have tried to compile it, but latest package of practices are still not available on each and every crop and on regional basis. So this package of practices need to be compiled properly. So we are on the way, we are preparing it, and it's available in our website also. You can see our website. Development of value chain for farmers to increase their income to promote organic farming. This is one of the most important aspects. We need to develop an entire value chain, starting from availability of seed, availability of inputs, to the farming, to the production things, then to the protection also aspects, then come processing, packaging, and then labeling and marketing also. This is there. So these are the things, these are some of the challenges. Am I audible and visible to all properly? Yes, sir. Okay. Now, what are the opportunities? These are some of the challenges. Now, what are the opportunities? So it's organic farming and natural farming is considered as a low-hanging fruit amongst all sectors of economy. So we need to pluck it properly. Enhancement of soil health and sustainable production. So we can enhance the soil health. We have the opportunity to enhance the soil health, and then sustainability aspects also. Huge scope of improving production, 65% dry land and rain-fed areas, 85 million hectares by increasing cropping intensity. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा scopes हैं हमारे पास प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के. ड्राई लैंड एरियाज को हम टारगेट कर सकते हैं, रेन-फेड एरियाज को भी. So इतना मिलियन हेक्टेयर का एरिया हमारे पास है, but we need not to target the entire area, but 5% to 10% can be targeted. So ensuring health and nutritional security, health तो ensure करते ही हैं, और nutritional security भी इससे ensure होगी. As you all know कि कोविड में जैसे आप पहले बता रहे थे, Dr. MP Singh, he stated that for improving our health, everybody is aspiring for the chemical free products, chemical free food. So health and food health, so and nutritional security can be ensured by way of adopting this organic farming, chemical free farming. So quantum jump of 100% recorded in some countries during COVID-19 as far as demand for organic produce is concerned. So ये भी एक बहुत अच्छा opportunity है with all of us. Reduction of greenhouse gas to mitigate climate change and global warming. एक बहुत बड़ी opportunity है. ये इतना बड़ा issue है. This greenhouse gas emissions, then climate change and global warming is
हैपनिंग. सो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से कुछ कर पाए, so it's a big thing. So it's a big opportunity to reduce import of chemical fertilizers and fertilizer subsidy. So import of chemical fertilizers and आप देखेंगे आज तो scenario is so difficult, you know. आप देख रहे हो कि यूएसएसआर में क्या हो रहा है, जहाँ से हमें ये जो हमें फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए या फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते थे, तो सप्लाई बंद हो गई है क्योंकि बहुत सी जो अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बाहर, तो इसमें बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं. सो ये सारी चीजें, इनके कारण क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का अवेलेबिलिटी इज अ बिग इशू. अगर अवेलेबल भी है तो बहुत कॉस्टली है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी. गवर्नमेंट के एक्सचेकर में ये बहुत बड़ा डेंट पड़ता जा रहा है. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विद ऑल ऑफ अस. सो वेस्ट टू वेल्थ फिलिप, नेचुरली कंपोस्ट बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बनाना. सो ये वेस्ट से वेल्थ की तरफ हम देख सकते हैं. जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो these are the opportunities. Now, how we are targeting? Our purpose is take up capacity building program in a big way. हम लोगों को अवेयर करते हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैटर करते हैं. सबसे पहले तो हमारा स्टेक होल्डर जो मेन है दैट इज फार्मर्स. सो फार्मर ट्रेनिंग एंड फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग शुरू करते हैं, और जैविक किसान सम्मेलन हम करते हैं. 30-day सर्टिफिकेट कोर्स फॉर यूथ ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी हमारा एक कोर्स है जो ऑफलाइन से हम चलाते हैं. रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर एनालिस्ट ऑन क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ बायो एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अंडर एफसीओ, ये हम चलाते हैं. और स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत भी एक ऑर्गेनिक मैनेजर का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं. तो इस तरह से दीज आर द थिंग्स विच वी आर टेकिंग अप एंड गोइंग अहेड. क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी करीब 28 लेबोरेटरीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की. 5 लेबोरेटरीज तो हमारी हैं, आउट ऑफ 7 5 आर ऑपरेशनल एज ऑन डेट. सो वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की टेस्टिंग करते हैं, और देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं वो स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है पूरी कंट्री में जो बन रहा है. सो ये है. अब बात करते हैं जल्दी से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर. व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? आप देखते ही होंगे, आपने ऑनलाइन गूगल या कहीं पर भी अपने पढ़ाई की होगी एग्रीकल्चर की. तो इट्स अ होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच प्रमोट्स एंड एनहांसेस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी. इसी में ही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी में ही प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के. यहाँ पर emphasis is basically on use of management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted systems. So organic farming में basically vision of the farm is a sustainable, ecologically stable, self-contained, biologically complete and balanced, a dynamic living organic food. मतलब यहाँ पर हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि हमें अपने कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ फार्मिंग की तरफ जो हम करते हैं कि बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आए और पेस्टिसाइड्स का भी छिड़काव करना है, बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है. यहाँ पर हम आवर विजन इज कि हम नेचर के साथ मिलके काम करें, और बायोलॉजिकल साइकिल्स जो नेचुरल हैं हमारे जो खेत में, तो उसको हम एनहांस करें. उससे क्या होगा कि सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी. सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जब बिल्डअप होगा तो जितने भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बिल्डअप भी होगा, वो सोर्स बनेगा माइक्रोब्स का फूड, एनर्जी. माइक्रोब्स अपना अपना काम करेंगे, और उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं लॉक्ड हैं ऑर्गेनिक मैटर में, वो रिलीज होंगे सिस्टमेटिकली, सस्टेनेबली, और क्रॉप की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज होगी और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर बढ़ेगी. सो यही कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का. सेकेंड थिंग इज नेचुरल फार्म. आपने देखा आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए. उनका कहना है केमिकल लोड को कम किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को कम किया जाए हमारे देश में, और ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जो कि 25, 30, 35 ईयर से हमारी कंट्री में चल रही है.
नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी देखा जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली क्या है, जैसे आप देखिए जापानीज फार्मर मासानोबु फुकुओका फार्मिंग मेथड्स में involve no tillage, no fertilizer, no pesticides, no weeding, no pruning, and remarkably little labor, and accomplishing all this by careful timing of seeding and careful combinations of plants, जिसको हम कहते हैं ना मल्टी फार्मिंग सिस्टम, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम्स, प्रॉपर क्रॉप रोटेशंस. It rests on a belief in the universal life, giving powers that the elements of fire, water, and earth confer on the soil. मतलब नेचुरल फार्मिंग में आपकी एक ही चीज है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इसको डिफरेंशिएट करती है, दैट इज कि हमें कम इंटरवेंशन करनी है फार्म पे, और फार्म को एक, जैसे हम फॉरेस्ट को लेट इट ग्रो, जैसे फॉरेस्ट ग्रो कर रहा होता है ना, वहां पर nobody is there to cultivate, nobody is there to till, nobody is there to arrange the seeds, nobody is there in the jungle or in forest to take care of watering, nobody is there to take care of weeding. So this is the concept of natural farm. और उसको और अच्छा बनाने के लिए साइंस की हेल्प ली जाए, मल्चिंग साइंटिफिकली कैसे होती है, कैसे की जाए, और वापसा जैसे हम कहते हैं उसको कैसे किया जाए, और जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत नेचुरल फार्मिंग में, ऑन फार्म में गाय आधारित खेती, काउ डंग, काउ यूरिन लेके कैसे नेचुरल फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए, यही सारा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का, जो डिफरेंशिएट करता है इसको ब्रॉडली फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम बाहर से सोर्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हम बाहर से खरीद कर सकते हैं, परंतु नेचुरल फार्मिंग में ये सब कुछ भी बाहर से खरीदना नहीं, ताकि इनपुट कॉस्ट, टारगेट क्या है हमारा, मिशन क्या है नेचुरल फार्मिंग में, कि इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए. फार्म इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली अगर फार्मर की जो, जब वो सेल करता है, बेचता है, उसको प्राइस भी कन्वेंशनल के जितना ही मिलता है, तो जब उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई तो नेचुरली उनका रिटर्न्स जो है बढ़ जाए. तो डबलिंग द फार्मर्स इनकम में ये बहुत सहायक हो सकता है प्राकृतिक खेती, इसीलिए इसको लार्ज स्केल पे प्रमोट किया जा रहा है आज के दिन में. अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ केयर. तो हेल्थ क्या कहता है? टू सस्टेन एंड एनहांस द हेल्थ ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड प्लैनेट एज वन एंड इंडिविजिबल. Similarly, ecology, it is based on living ecological systems and cycles. Work with them, emulate them, and help sustain them. तो इकोलॉजी का प्रिंसिपल ये कहता है. फेयरनेस, ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities. तो कॉमन एनवायरनमेंट मिले सबको, और वो शुद्ध हो, साफ हो, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हो, एंड सबको लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई भी हो. तो उनके लिए फेयरनेस विद रिगार्ड टू कॉमन एनवायरनमेंट एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज. सिमिलरली केयर, to protect the health and well-being of current and future generations and the environment. Sustainability aspect यहाँ पर बहुत important है. तो principle of care ये कहता है. So these are some of the principles of organic farming. Then come organic crop production standards. जैसे अब standards क्या है? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो लोग समझते नहीं है, एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो समझना चाहते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि हम किसी स्टैंडर्ड्स के आधार पर खेती को करना होता है. इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है कि क्या है वो स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. आप देखेंगे इन शॉर्ट, तो थोड़ा सा और मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हमारी कंट्री में है, जिसको अडॉप्ट किया गया है अपेडा के द्वारा, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है. तो ये स्टैंडर्ड्स के आधार पर की जाती है कि क्या वो मानक हो जिसको फार्मर को एडॉप्ट करना है, और उससे वो साबित हो जाएगा जब उनका वेरिफिकेशन करेगा कोई थर्ड पार्टी, या वो सेल्फ वेरिफिकेशन करेंगे अपनी, तो उसमें ये स्टैंडर्ड्स को सामने रखना होता है. इन मानक के आधार पर हमें अपने आप को कंपेयर करना होता है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ फार्मिंग से. तब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्म है, इट इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म एंड इट इज लाइकली टू बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक फार्म. सर्टिफिकेशन जो एजेंसीज हैं वो इन्हीं मानकों को
देख के फार्मर के फार्म को सर्टिफाई करते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट को सर्टिफाई करते हैं या वाइल्ड हार्वेस्ट के एरिया को सर्टिफाई करते हैं। तो या लोकल ग्रुप को या जो ICS होता है, बड़ा ग्रुप बना होता है, उनको इन मानकों के आधार पर सर्टिफाई किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, हैबिटेट मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। तो हैबिटेट मैनेजमेंट सबसे पहले क्या क्यों कहा जाता है, ताकि फार्म जब आप रेडी कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या आपको शुरुआत में दिमाग में रखना है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर going ahead with cultivation of organic meat. So maintain sufficient diversity on farm. आपको diversity maintain करनी है on farm. Different types of plants, medicinal, horticultural, floriculture, अलग-अलग किस्म के plants को लगाना है वहाँ पर ताकि diversity maintain हो. Integration of agroforestry, measures to conserve and harvest water. ये सारी चीजों को पहले ही सोचना होता है. Entire land holding with livestock should be converted to organic. लाइफ स्टॉक को भी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि कहाँ से आप इनपुट्स केमिकल फ्री जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाओगे आप, अगर आपको कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बनानी है. पैरेलल प्रोडक्शन ऑफ सेम क्रॉप इन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक शुड बी अवॉइडेड. सो ये सारे मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जब जिसको हम कहते हैं. तो हैबिटेट मैनेजमेंट ये क्रॉप प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो. मैंने शॉर्ट लिए हुए हैं ताकि आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा easy लगे. Then come diversity management. So we have to avoid monocropping and maintain diversity. Mixed cropping, intercropping, crop rotation should be followed to maintain diversity. तो ये diversity management की बात है. Livestock को integrate करना है, वो आप सबको पता ही है livestock को कैसे हम integrate करते हैं. Seeds and material, all seed and planting material should be organic. और अगर organic available नहीं है, then you can have the hybrid type also initially, but that should be chemical treated. It should not be treated with chemicals. वो treatment उनको cow urine या बीजा अमृत से ही कर पाए. So use of GMOs are strictly prohibited. ये सारे मानक मैं आपको एक जस्ट इंडिकेशन दे रहा हूँ कि क्या होता है. बाकी तो आप नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अगर अपेडा की वेबसाइट पे जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे, तो यू विल फाइंड द डिटेल्स ऑन दीज स्टैंडर्ड्स. क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या अलाउड है, कौन सा क्या क्या चीजें, वो भी आपको डिटेल मिल जाए, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. देन कम सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ग्रीन मैन्योरिंग से शुरू करना है. लेग्यूम कवर क्रॉप, इंटरक्रॉप, मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशंस, recycling of farm waste through composting or mulching. Raw जो dung है, urine products है, should be used only after controlled fermentation. Mined mineral fertilizers like rock phosphate etc. can be used. Off-farm input should be evaluated by a group. अगर off-farm inputs ले रहे हो आप, अगर आपके farm में inputs available नहीं है, तो then it should be evaluated by a group. Biofertilizers, biodynamic preparations, EM solutions can be used. Use of sewage, sludge, human excreta on their products are prohibited. This is soil fertility and nutrient management. Then insect pest disease and weed management. It should rely on best management practices. मतलब आप इसको physically, mechanically and biological approaches से pest, disease और weed management को कर सकते हो. Chemical methods अपनाने नहीं. In extreme critical condition, product approved by certification bodies like NPOP can be used. On-farm produce, plant extracts, oils or fermented products can be used. Plant extracts होते हैं, चाहे वो नीम के पत्ते हैं, कड़वे पत्ते हैं, जितने भी फील्ड में अवेलेबल हैं, ऑयल है चाहे नीम बेस्ड ऑयल है, और fermented products कोई भी cow urine based, उनको आप यूज कर सकते हो. Weed management can be done through mulching, hand or mechanical weeding, flame, heat or electric means. So use of synthetic chemical preparations are strictly prohibited. So these are the standards basically on different components of organic farming. So collection of non-cultivated products from wild habitats and forests. ये थोड़ा आपको ज्यादा हो जाएगा अभी समझने के लिए. Wild harvest कैसे वहाँ से collection किया जाता है, वहाँ उसके लिए भी पूरे के पूरे standards बनाए गए. So these are there. Then come this organic farming management is an integrated approach where all aspects of farming systems are interlinked with each other and work for each other. Healthy, biologically active soil,
is a source of crop nutrition. On-farm biodiversity leads to controlling the pests and diseases. Crop rotation and multi-cropping leads to maintain the system's health. On-farm resource management with integration of cattle can lead to ensuring productivity and sustainability. How? By proper this soil management, nutrient management, right? So this is there. Then all these standards are need to be implemented. So who will help the farmers to take care of these standards? There are service providers. Service provider may be a government agency. We may be a service provider. You may be the service provider to the farmer. So what service provider has to do? Capacity building and training, formation of agro advisory network, individual farm mapping, advice on crop plan and input management, input assessment, stakeholders energy in input production and crop production and processing, systematic monitoring and record keeping, yield assessment and market assistance. ये सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेशन के लिए भी हेल्प करेंगे, स्टैंडर्ड्स को फार्मर को किस तरह से स्टैंडर्ड्स को समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एजुकेटेड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बेसिकली वो एजुकेटेड फार्मर के लिए इनिशियली बनाई गई, क्योंकि हमने फॉरेन बेस्ड स्टैंडर्ड्स को लिया। परंतु अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग तो अभी बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी शुरू नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो फॉरेन बेस्ड हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग चलते हैं, वहां से हमने उसको कॉपी किया है या लिया है। और एक्सपोर्ट की बात होती है तो हमें उनके स्टैंडर्ड्स के साथ में हार्मोनाइजेशन करनी होती है, उनके साथ में हमें उनके स्टैंडर्ड्स को भी लेना होता है, समझना होता है। परंतु नेचुरल फार्मिंग ऐसी होगी, नेचुरल फार्मिंग जो भी करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन चलाया और वो सेल्फ सर्टिफिकेशन खुद अपने आप ही अपने फार्म को सर्टिफाई कर पाए, बाहर से किसी एजेंसीज को आके सर्टिफाई ना करना पड़े। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और किस तरह से नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम इवॉल्व हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अच्छी है, उसमें वो भी जिस फार्मर को एक्सपोर्ट करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना है, दे आर फ्री टू डू इट, इट इज वॉलंटरी। हम किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि भाई हाँ आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है या आपको नेचुरल फार्मिंग अपनानी है। सो ये ऑप्शन है फार्मर के पास में कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाए या नेचुरल फार्मिंग को अपनाए। तो हमारा काम है गवर्नमेंट का कि सिस्टम को सेट करना है, स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना है और स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करना है कि स्टैंडर्ड्स जो हम बना रहे हैं या हमने जो ले डाउन कर लिए हैं वो नेचुरल फार्मिंग के हों या ऑर्गेनिक फार्मिंग के हों, वो एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी उनको समझ पा रहा है या नहीं। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। नाउ कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक फार्मर या बेस्ट जो ऑर्गेनिक मॉडल फार्म है वहां पर जाना है। किसी भी फार्मर को अगर शुरुआत करनी है तो उसको पूछना है उस बेस्ट चैंपियन फार्मर से, प्रोग्रेसिव फार्मर से, कैसे वो इतना अच्छा प्रोडक्शन ले पा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से या नेचुरल फार्मिंग से। तो इंटरनेट भी आज सहारा है, वीडियो भी है, ट्रेनिंग्स हैं जैसे आज चल रही है, बुक्स एंड बुकलेट्स है, वीडियोस है, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद अदर फार्मर्स। ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ऐसे ही बताते होंगे कि पढ़ाई करने के लिए सारी चीजें जरूरी है, तो फार्मर के लिए भी हम इसी तरह से पाथ ले डाउन करते हैं। They have to acquire knowledge on organic farming, discuss and evaluate within the family, analyze the situation on the farm, test organic farming methods in half or 1 acre, then take a decision. So ये सारी चीजें इस तरह से फार्मर को डिसीजन ले। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, जब वो एक स्टैंडर्ड, एक मॉडल ऑर्गेनिक फार्म या चैंपियन ऑर्गेनिक फार्मर के पास जाए तो भाई उसके फार्म पे वो जब देखेगा इतनी अच्छी वेजिटेबल्स उगाई गई है, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लगे हैं, उनके पशु भी बहुत हेल्दी हैं, सो वो उनसे पूछेगा कि भाई आपके इतना अच्छा फार्म कैसे हुआ। तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगा, राइट। देन कम क्रॉप सिलेक्शन, आपको अपने एरिया के हिसाब से क्रॉप का सिलेक्शन करना है। स्टैंडर्ड्स को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, मानकों को, बट साथ ही साथ यू हैव टू सी
कि क्या आप जो फीड खिलाना है एनिमल्स को वो आपको ऑन फार्म अवेलेबल होना चाहिए। बाहर से केमिकल या ग्लाइफोसेट से छिड़काव वाला जो ग्रास है वो आप फार्मर्स को ना खिलाएं। देन क्या आपको फीड करना है सॉइल को, फास्ट ग्रोइंग लेग्यूम क्रॉप्स को कैसे आपको इंटीग्रेट करना है मेन क्रॉप के साथ में, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो। सिमिलरली मल्टीपर्पज ट्रीज फॉर शेड, ट्रीज टू क्रिएट अ फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉपर हो जाए आपकी, और क्रॉप्स टू फीड माय फैमिली एंड टू सेल इन द मार्केट। ये सारे डिसीजन फार्मर को लेने हैं। मुझे अपने अपने लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है या कुछ बाहर बेचना भी है या अपने रिश्तेदारों को सप्लाई करना है पहले। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही डिसीजन लेना है, क्रॉप का सिलेक्शन करना है। देन फार्म प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट भी बचाना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कन्वेंशनल स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड का, तो आपको एक बफर जोन तैयार करना होगा, आप देख रहे हो इसमें स्लाइड में। हेज लगाना होगा और आपको अपने नेबर को कहना होगा कि वो स्प्रे ना करे इनडिस्क्रिमिनेटली बॉर्डर पर, ताकि उसके ऑर्गेनिक फार्म को डिस्टर्बेंस या वहां पर ड्रिफ्ट ना हो पेस्टिसाइड्स का या वीडीसाइड्स। So these are the things which a farmer need to understand before shifting to the this organic farming or natural farm. So ये सारी चीजें हैं। आइडियल क्रॉप रोटेशन को आपको फॉलो करना है। आइडियल ग्रीन मैन्योर प्लांट को आपको लगाना है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली करना है। इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू मॉनिटर द पेस्ट इंसेक्ट्स डिजीजेस इंसिडेंट्स टाइम टू टाइम, और उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिकली और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल है तो उसको कैसे करना है, नेचुरल हेजेस लगाने हैं और इंडिजिनस श्रब्स लगाने हैं, फ्लावर्स लगाने हैं टू अट्रैक्ट नेचुरल एनिमल्स। सो alternative food for pests. So ये कुछ principles हैं which you need to follow to control this insect pests and diseases in organic or natural farm, we can say. Then mechanical weed control, manual weeding ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, hand weeding in mulched gardens. These are the things which you need to take up. Sustainable organic farm आपको तैयार करना होगा जहाँ पर यू कैन सी इंटीग्रेशन ऑफ एनिमल्स सबसे पहली चीज है। जहाँ पर आप काओ हो या अदर कैटल्स हो, उसका मैन्योर आप लेके आ रहे हो, यू कैन सी इन द स्लाइड विच कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड। देन ग्रोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स, देन यू हैव टू फॉलो प्रॉपर क्रॉप रोटेशंस एंड इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम्स। सो इस तरह से ये पूरा के पूरा साइकिल को आपको फॉलो करना है, बायोलॉजिकल साइकिल को पूरे अपने ऑर्गेनिक फार्म। देन कम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। आपने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्ट करने के बाद में 25 to 30% अगर आपका अच्छा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो आपका लॉसेस हो जाते हैं। इतनी मेहनत भी की और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई है तो यू कैन सी कि आपके कंज्यूमर्स भी आपसे खुश नहीं होंगे जिनको आप बेचोगे, प्लस आपको भी काफी लॉस होगा। क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है और स्पिलेज, ब्रूजिंग, ब्रेकेज, लीकेज, इन सब का आपको ख्याल रखना है। एक्सेस हीट और स्टोरेज की प्रॉपर मॉइस्चर, रेन और ह्यूमिडिटी से उसको बचाना है। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का आपको ख्याल रखना है और कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में लेके उसको पैक करके लेबल करके मार्केटिंग करना है, ताकि कंज्यूमर्स भी खुश हो और आपके प्रोड्यूस का अच्छा दाम दे पाए। सो दिस इज अ पोस्ट हार्वेस्ट एंडिंग फ्लो चार्ट। कभी बाद में आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि आज समय की कमी है, 1 घंटे में आपको सारी चीजें बताना मुश्किल है। सो यू कैन सी क्यूमुलेटिव लॉस फ्रॉम प्रोडक्शन। तो प्रोसेसिंग देखिए, अगर हार्वेस्टिंग में 4 to 8% लॉस होता है, ट्रांसपोर्ट में 2 to 4%, ड्राइंग में 1 to 2%, टोटल इन सब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 10 to 23% क्यूमुलेटिव लॉस होता है प्रोडक्शन का, जो आप प्रोड्यूस इतना अच्छा निकालते हो, तो उसका भी ख्याल रखना होगा। और केमिकल फ्री मेथड से आपको प्रोसेसिंग और स्टोरेज करनी होगी। सो दीज आर some of the important things which I would like to highlight as far as organic farming is concerned, crop production to post harvest management. Then come this organic guarantee. अब आपने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग तो निकाली और आपने प्रोड्यूस भी निकाला, बट
वो गारंटी कैसे हो, आप कैसे उसको गारंटी करोगे कि जो आपका प्रोड्यूस निकला है दैट इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, दैट इज 100% ऑर्गेनिक। वो गारंटी कैसे मिले कंज्यूमर को कि जो ये पीजीएस इंडिया ग्रीन, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक या इंडिया ऑर्गेनिक का जो मोहर लगी हुई है वो कैसे ट्रेसेबल हो कि हाँ इसमें कोई भी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स मिला नहीं। तो ये ऑर्गेनिक गारंटी क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ assuring quality of products produced by the farmers by following certain set of standards which are verified and documented and demonstrated in the form of a logo or a statement. So ये जो लोगो है और इसके साथ में जो स्टेटमेंट है इंडिया ऑर्गेनिक, पीजीएस इंडिया ग्रीन, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये सारी एक स्टेटमेंट है और उस लोगो को, लोगो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये सारे जो नेशनल मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उन सब प्रोसेस से गुजरा है और उसको वेरीफाई किया गया है किसी सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा या रीजनल काउंसिल के द्वारा पीजीएस सिस्टम। तो पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक अगर आप देखेंगे तो पीजीएस इंडिया ग्रीन का मतलब है कि जब आप कन्वेंशनल सिस्टम से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसमें 2 to 3 इयर्स कन्वर्जन में लगते हैं। यही थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में भी होता है, यही पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन में भी होता है। तो किसी भी कन्वेंशनल फार्म में जब हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं तो उसमें उनका थोड़ा रेजिड्यू रह जाता है और वो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, हैवी मेटल्स हैं। तो इसीलिए 2 to 3 इयर्स का कन्वर्जन का टाइम होता है। तो पीजीएस में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है फार्मर के पास में कि वो फर्स्ट ईयर से ही, जब फर्स्ट ईयर कन्वर्जन होता है तो पीजीएस इंडिया ग्रीन लोगो यूज रख सकता है, कर सकता है और अपने उत्पाद को बेच भी सकता है अंडर कन्वर्जन करके। फाइनली जब 2 to 3 इयर्स बीत जाते हैं और प्रॉपरली वो फॉलो करता है सारे सिस्टम को तो फार्मर को पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक 2 to 3 इयर्स के बाद में मिल जाता है और तब फार्मर पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक करके अपने प्रोड्यूस को बाहर बेच सकता है, चाहे डोमेस्टिकली चाहे एक्सपोर्ट करने के लिए थ्रू अपेडा थर्ड पार्टी के साथ लेकर। सो ये है। और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम के यूनिक फीचर्स क्या है? ये इसको नेशनल रिकॉग्निशन है और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है और इसमें जो स्पिरिट है हमारा पीजीएस का, उसको भी स्पिरिट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन में? यहाँ पर पीपल इन सिमिलर सिचुएशंस मींस फार्मर्स, दे असेस, दे इंस्पेक्ट एंड वेरीफाई द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर एंड कलेक्टिवली डिक्लेयर द एंटायर होल्डिंग ऑफ अ ग्रुप एज ऑन। पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है, इट इज लोकली फोकस्ड और इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स है लाइक प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स एंड इवन कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स एंड इट ऑपरेट्स आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। तो इस पीजीएस इंडिया सिस्टम को समझने के लिए आपको जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम पेडा, उसमें थर्ड पार्टी क्यों? थर्ड पार्टी इसलिए है कि सर्टिफिकेशन बॉडी फार्मर के पास जाती है, उनका ऑडिटर आता है बाहर और वो फार्मर का एक्शन वेरिफिकेशन चेकिंग करता है कि वो स्टैंडर्ड्स के आधार पर फार्मिंग कर रहे हैं। और इस पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन में क्या है कि फार्मर्स आपस में ही एसेस करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के खेत को और वेरीफाई करते हैं प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को कि हम लोग हमारी पूरा के पूरा ग्रुप, पूरा के पूरा जो विलेज है दैट इज केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री और हमें सर्टिफिकेशन प्रदान की जाए। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? हॉरिजॉन्टलिटी, नेशनल नेटवर्किंग, पार्टिसिपेशन, शेयर्ड विजन, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, इस पर ये आधारित। लोगों को मैंने आपको बता दिया। अंडर कन्वर्जन 2 इयर्स फॉर सीजनल क्रॉप्स, 3 इयर्स फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, कन्वर्जन पीरियड। इसी तरह से आप देखेंगे सेक्शन 22 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कहता है कि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, इन दोनों को ही लीगल जो लीगल बैकअप है सेफ्टी का है और जैविक भारत लोगो दोनों ही लगा सकते हैं। दोनों टाइप के सर्टिफिकेशन सिस्टम में ये जैविक भारत के लोगो का लगाने का प्रोविजन। और सर्टिफिकेशन सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। डोमेस्टिक ट्रेड के लिए पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है और थर्ड पार्टी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है प्राइमरी। परंतु
थर्ड पार्टी में ट्रेडिंग भी की जा सकती है। और इसमें आप देखेंगे वर्किंग क्या है, मैंने आपको बता दिया। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स वो एसेस करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं ईच अदर को। और की स्टेक होल्डर्स हमारे कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड एनजीओज। और ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन प्रोसीजर अगर इन शॉर्ट देखा जाए, कैसे सर्टिफिकेशन होता है, थोड़ा सा अगर आप बोर ना हो रहे हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन जो होता है थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, और ये प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाएं, जब करेंगे तभी उसको वो आप समझ पाते हैं इजीली, और तभी वो आसान होता है। फार्मर एडॉप्ट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। लाइक माइंडेड फार्मर्स, चाहे वो सेम विलेज के हों चाहे नियर बाय विलेज के हों, वो लोकल ग्रुप बनाते हैं, मिनिमम 5, इट कैन बी 50-100 फार्मर मेंबर्स। फिर कलेक्शन ऑफ फार्मर हिस्ट्री शीट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, मतलब फार्मर ने क्या क्या हिस्ट्री में केमिकल्स डाले, क्या क्रॉप्स उगाए हैं, वो सारा फार्म हिस्ट्री शीट को किया जाएगा हर एक फार्मर का। फिर एंडोर्समेंट की जाती है from an already existing local group. In case of no local group existence, endorsement can be obtained from state agriculture department, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हो उनसे, या हमारे रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग से। Submission of farmer history sheet, copy of signed farmers pledge and endorsement form to the regional council for local group registration. ये सारी के सारी जो फार्मर हिस्ट्री शीट है, ये रीजनल काउंसिल जो होती है वो सर्टिफिकेशन का फैसिलिटेशन करती है, तो उनको ये ऑनलाइन पोर्टल में चली जाती है और लोकल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। और डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन टू द रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल जो होती है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह ही है, वो चेक करती है इंडिविजुअल की फार्मर्स डिटेल्स एंड रजिस्टर द लोकल ग्रुप्स ऑन पीजीएस इंडिया वेबसाइट। आप देखेंगे अगर पीजीएस इंडिया वेब पोर्टल को खोलेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लोकल ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है लोकल ग्रुप की या इंडिविजुअल फार्मर की, तो उनको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। अब रीजनल काउंसिल विल प्रोवाइड लिटरेचर टू लोकल ग्रुप ऑन पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको नेशनल स्टैंडर्ड्स बताए, लार्जली वही स्टैंडर्ड्स हैं। Local group will hold meetings with field trainings and will develop the different methods of farm operations. Farmers of the local group will keep a vigil on each other farms. ये है इसका जो बैकबोन है इस सर्टिफिकेशन सिस्टम की। मतलब गांव में जो किसान है वो एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं ऑन ईच अदर फार्म्स, कि हम कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल छिड़काव तो नहीं कर रहा है। So peer appraisal is required for each farm twice a year and will be done by peer appraisal committee. तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है एंड आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा आज थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना है और वो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन से लिंक्ड है। मतलब वहां पर परंपरागत कृषि विकास योजना में किसानों को क्लस्टर में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये स्कीम चलाई जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त 8 लाख हेक्टेयर एरिया परंपरागत कृषि विकास योजना में आ चुका है और सर्टिफिकेशन सिस्टम को इन फार्मर्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी चल रहा है। वहां पर एफपीओज बनाई जा रही हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और वहां पर जो प्रोड्यूस है उसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करवाया जा रहा है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। जो स्पेशल निश प्रोडक्ट्स हैं, निश क्रॉप्स हैं, उनके जो प्रोड्यूस को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी करवाया जा रहा है। तो ये मिशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी चल रहा है, पीकेवीवाई एंटायर कंट्री में चल रही है। तो इस तरह से स्कीम्स आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वेरियस स्कीम्स चला रखी। और आरकेवीवाई भी स्कीम चलाई गई। और इसके अलावा आप देख रहे हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत असिस्टेंस दी। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम में भी काफ़ी असिस्टेंस दी जा रही है। और इस तरह से ये सारी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि
ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए एंटायर कंट्री. सो दीज आर द थिंग्स, डियर फ्रेंड्स, which I have, for you, and I have presented in front of you. And I hope you have enjoyed the session. And anything you can ask wherever you find difficulty in understanding. So, one more thing I would like to tell all of you is that I have seen that time and again, lot of entrepreneurs, lot of educated unemployed youth, they are coming in our center. They are calling me that how we can start the entrepreneurship in organic farm. There are various ways through which we can start the entrepreneurship in organic farming. You can start simply through establishing a small low cost vermicompost unit also. So people, they are earning per year 10 lakh to 20 or 50, or we can say 1 crore also by establishing a big vermicompost unit. So simply vermicompost unit एक component को लेके भी आप start कर सकते हो. Then you can be a supplier of vermicompost. You can be a manufacturer of phosphate rich organic manure. You can be a manufacturer of biofertilizers. You can set up a biofertilizer unit also. You can start with the consultancy in organic farming. So ये सारी चीजें आप शुरू कर सकते हो. और you can be a certification expert. तो इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, और आप अपना शुरू कर सकते हैं मिशन, जो स्टार्टअप जिसको हम कहते हैं फार्मिंग सेक्टर में. तो स्काई इज द लिमिट. मार्केटिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं. आप डिफरेंट पीजीएस सर्टिफाइड, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड प्रोड्यूस को लेके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और मार्केट कर सकते हैं. आप चाहें तो एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर सम ऑफ द इंडिकेटिव fields where the employed educated youth can take up organic farming certification, including marketing in a big way. So thank you very much for your patient hearing and understanding the things on organic farming and certification, including marketing. Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर. हमारे बच्चे जो ऑनलाइन के अलावा जो हमने हॉल में अपने बिठा रखा बच्चों को, और ऑफलाइन में बच्चे बहुत बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने, बहुत हॉल में बैठे हुए हैं. तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम सर. और मैं अपने कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर एमपी सिंह सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे सब तरफ बढ़ाए. हेलो, हाँ मेनन जी, नमस्कार. डॉक्टर देवेंद्र पाल जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, आ रही क्लियर है सर. ओके 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 ओके. आई थिंक डॉक्टर साहब अभी थोड़ा बिजी हैं. सो हमारे जितने भी फैकल्टी इसमें जुड़े हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको अटेंड किया है, स्क्रीन पे उतने सारे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पूरी क्लास एक ही जगह बैठी हुई है. तो जो जूम है, जूम में जो नंबर आपको दिख रहा है दोज हु हैव अटेंडेड, वो बहुत बड़ा नहीं दिखेगा. रीजन बीइंग कि many of स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस ऑनलाइन आफ्टर सिटिंग इन द ग्रुप. सो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, स्पेशली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से मैं डॉक्टर गणेश शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे स्टाफ को और हमारे स्टूडेंट्स को आज ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके सर्टिफिकेशन के ऊपर जो ज्ञानवर्धन किया है, उनकी नॉलेज को एनहेंस किया है. निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक लैंडमार्क होगा, साबित होगा, और हमारे स्टूडेंट्स इससे बहुत लर्न करेंगे. आगे भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर गणेश शर्मा जी से कि वो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स को लगातार इसमें, और हमारे स्टाफ को, हमारी फैकल्टी मेंबर्स को लगातार गाइड करते रहेंगे. और हम उम्मीद करते हैं जो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं उनके रेफरेंस में
डॉक्टर गणेश शर्मा जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे यूनिट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब ये इस समय जब ये हमारा सेशन चल रहा था, इस बीच में भी हमारे कुछ स्टूडेंट मुझसे मिलने आए थे। दे आल्सो स्टार्टेड देयर ऑन स्मॉल बिजनेसेस इन द रूरल एरियाज और बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टार्टिंग के हिसाब से। और ऐसे ही जहाँ तक डॉक्टर गणेश शर्मा जी ने एक एग्जांपल दिया वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट का, हमारे कुछ स्टूडेंट है, खासतौर से मेरे एक स्टूडेंट याद आ रहा है जो लगातार मेरे टच में रहता है, बदायूं से है वो, उसने ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट को उसने एस्टेब्लिश किया है और पिछले साल का उसका टर्नओवर जो था करीब करीब 70 लाख रुपए का था पिछले एक साल का। और निश्चित तौर पे उस 70 लाख में जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी अमाउंट बड़ा अच्छा और हैंडसम रहा होगा निश्चित तौर पे। तो ऐसे ही बहुत सारी और एग्रीकल्चर की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, चाहे वो पोल्ट्री की हो, चाहे पिगरी की हो, चाहे फिशरीज की हो, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग की हो, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से एग्रीकल्चर में अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम फार्मर्स ले सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें निश्चित तौर पे अपने एक छोटा सा साइड बिजनेस कह सकते हैं या फुल टाइम बिजनेस बोल सकते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गणेश शर्मा जी से और डॉक्टर देवेंद्र पाल जी उसमें लगातार सर आपके टच में रहेंगे कि अगर, क्योंकि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2014 में हुआ था और इस समय हम ये 8वें साल में एंट्री कर गए हैं और हमारे 4 बैच पास आउट हो चुके हैं और 4 बैच इस समय हमारे चल रहे हैं। और हम जो इंडिया के फ्यू कॉलेजेस हैं जो ICAR से एक्रीडेटेड है, जहां तक मेरी नॉलेज शायद 10-12 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जो ICAR से एक्रीडेटेड है, प्राइवेट कॉलेजेस की जहां तक बात है उनमें से हम एक हैं। और निश्चित तौर पे हमारा कंसंट्रेशन क्वालिटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं बल्कि वी आर 100% क्वालिटी ओरिएंटेड। और निश्चित तौर पे हमारा मैनेजमेंट भी उसी तरफ सोच रहा है। तो मैं डॉक्टर गणेश शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो और कोई 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 अदरवाइज कोई इशू ना हो और सब कुछ अगर पॉसिबल हो, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपनी फैकल्टी के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। एक MOU की हम शुरुआत कर सकते हैं जिससे निश्चित तौर पे जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग है गाजियाबाद का, जिसके आप डायरेक्टर हैं, निश्चित तौर पे वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है स्पेशली नॉर्दर्न रीजन, इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। तो इसमें अगर हम कुछ हेल्प कर पाए इस मिशन में आप लोगों की या गवर्नमेंट की हम कुछ हेल्प कराएं तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, चाहे वो MOU के थ्रू हो, चाहे वो सेंटर के एक्सटेंशन पार्ट को लेकर किसी भी फॉर्म में अगर हम हेल्प कर पाएंगे अपने फार्मर्स की तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हाँ, इन एडिशन टू दैट सर, डॉक्टर गणेश शर्मा सर, मैं आपको एक और चीज अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने अपने पास ही के 8 गाँव को अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ पर हमारा कॉलेज लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराता रहता है, वहाँ के फार्मर्स को गाइड करता रहता है। बट अभी क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर लोगों में बहुत सारे मिथ हैं और फार्मर्स डरते हैं, क्योंकि मैं इसी एरिया को बिलोंग करता हूँ और ये यहाँ के फार्मर्स को मैं जड़ों तक जानता हूँ। तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके खासतौर से इस रीजन के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। हालांकि हम बीच बीच में थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, बट वो अभी कोई फ्रूटफुल या क्वांटिफाइबल फॉर्म में हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर हम इसमें आपके मिशन में कुछ हेल्प कर पाएंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। निश्चित तौर पे आज का सेशन कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे स्टाफ के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका डॉक्टर गणेश शर्मा सर, आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों को इस सेशन के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के और उसके सर्टिफिकेशन के बारे में हमें अवगत कराया। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर देवेंद्र पाल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, सभी लोग जुड़े हुए थे। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। गणेश सर का तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। जब भी मैंने बात किया तो सर कभी हिमाचल है, कभी दिल्ली मीटिंग में है, कहीं दूसरी जगह है, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। क्योंकि पता नहीं कैसे सर ने कहा था कि मैं जरूर आज भी अभी दूरदर्शन की टीम आई हुई है, वो उनको मैंने बाहर फील्ड में भेज दिया है और आपके लिए समय निकाला।
और बच्चों के लिए जो आपकी फैकल्टी है प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं ताकि वो सीखें, उनको सीखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। और कभी हम पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे उन सबके साथ में, ताकि उनको एनकरेज किया जाए कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर कितना अच्छा सेक्टर है, इसमें कितने वाइड वो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या क्या है वो उनके साथ में कभी डिस्कस करेंगे आप जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के कार्यक्रम के लिए, आपका समय देने के लिए। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपसे हम समय समय पर बीच बीच में जुड़े ही रहेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने में हम लोग योगदान देंगे पूरा एचसीओ के। और इसमें आपके गाइडलाइंस के बिना कुछ नहीं संभव है, तो आपका सहयोग सर हम जरूर लेते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सभी का देवेंद्र। धन्यवाद बहुत।